Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So welcome back once again, and let us continue with the partnership final accounts that we have been learning. Who are these two? Well, they are the characters in our episode today. नाम क्या है? जैसे ही क्वेश्चन का खुलासा हो जाएगा, नाम आपको पता चल जाएगा. So here goes. From the following trial balance of Messrs. Meera and Madhav. So very quickly, let me give them their wonderful names, being Meera and Madhav. And our concentration on this frame is on what? The profit sharing ratio. Right now, I don't know, आपको भी पता नहीं है, पूरा sum पढ़ लेंगे, and then during the sum, somewhere there will be a hint. If there is no hint, no problems, we will keep it 1:1. Okay, so I hope अभी तक आपकी फॉर्मेट की तैयारी हो चुकी है. अगर नहीं हुई है, then maybe in the next 5 minutes जब मैं ये पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्कस करूँगा, ऊपर का दिया गया एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूँगा, तब तक अपना फॉर्मेट आप रेडी रख लीजिए. So let's get started. Prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019. Okay, so the beginning is 2018 and the end is 2019. Nothing different. We have always had the same year. Okay, trial balance as on 31st March 2019. We have a debit side which is left. We have a credit side which is right. Right now, let's start with the left side. So, first, स्टॉक. फर्स्ट डे का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक होगा, ट्रेडिंग अकाउंट. डेटर एसेट होता है, बिल रिसीवेबल एसेट. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट. रिटर्न्स, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, सर परचेस रिटर्न के सेल रिटर्न, ऑलवेज रिमेंबर रिटर्न्स का होता है क्रॉस कनेक्शन. जो डेबिट में रिटर्न आता है वो क्रेडिट में जाएगा, और जो क्रेडिट में रिटर्न आता है वो डेबिट में जाएगा. मीनिंग ये जो डेबिट का रिटर्न है क्रेडिट में जाएगा, मतलब ये सेल्स रिटर्न बन जाएगा. आई रिपीट माई सेल्फ, इफ समबडी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग, सर ये क्या बोल रहे हो, अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, कुछ लॉजिक होना चाहिए, ये क्या क्रॉस कनेक्शन दिखा रहे हो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट. वेल, अगर आपको साइंस या लॉजिक की ज़रूरत है, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि अकाउंट्स है तो कोई चीज़ फिक्शनल तो नहीं होती है, फैक्ट होती है, सत्य वचन. डेबिट में जो रिटर्न्स आता है उसका मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन. जो आपने बेचा, किसी कस्टमर को नहीं पसंद आया और उसने वापस दिया, इसके लिए वो है सेल्स रिटर्न. दैट इज़ द लॉजिक.
debit में returns is debit what comes in and it has to be sales return and accordingly credit में it has to be credit what goes out. तो उतनी लंबी कहानी मुझे नहीं बतानी है. नॉर्मली कोई प्रोफेसर ये एक ही बार बोलेगा, जैसे मैंने आज ये एक बार बता दिया, आगे से क्रॉस कनेक्शन याद रखना. तो ये जो है ये सेल्स रिटर्न है, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. कैरेज इनवर्ड प्रोडक्शन के पहले ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड प्रोडक्शन के बाद पीएनएल. मोटर व्हीकल बाद में, पहले कुछ नहीं है. मोटर व्हीकल सालों साल काम आएगा. एसेट, जनरल एक्सपेंस, चाय पानी, समोसा वड़ा पाव, चाइनीज़ भेल, ये जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं ना, उसको आप जनरल एक्सपेंसेस बोल सकते हो. पीएनएल. एक्सपोर्ट कब करते हो? प्रोडक्शन के बाद, दैट मीन्स पीएनएल. एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन के बाद ही तो होता है, पहले थोड़ी हो पाएगा. therefore it is PNL. but no, there is not a little, there is a very important, महत्वपूर्ण गड़बड़ नहीं है, गड़बड़. ओके हाँ, because it says for 3 years. जब भी 3 years, 4 years, 15 months, 16 months, 8 months, there is गड़बड़ मतलब hidden adjustment. now there is a different thing. it says from 1/10/2018. what is 1/10/2018? कभी कभी वर्डिंग्स होते हैं WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम. ओके, ये जो दोनों चीज़ है जो इसके साथ कनेक्टेड है, आई विल एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ. जस्ट अंडरस्टैंड, लीव वन लाइन. प्रिंटिंग PNL आएगा. ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लीज होल्ड प्रेमाइसिस. सी, प्रेमाइसिस इज प्रॉपर्टी. very simple, let's not have any confusions about it. हाँ, but the property is on lease. somebody would ask, lease का मतलब क्या है? लंबा भाड़ा. ओके, so when you take something on rent, अगर आप किसी घर को रेंट पे लो, most probably वो आपने 11 महीने के लिए लिया होगा, most probably. ओके, बट कभी कभी लेट्स से मुझे होटल की शुरुआत करनी है. ओके, अभी 11 महीने के लिए होटल के लिए कोई जगह रेंट पे लेना डजंट मेक मच सेंस, क्योंकि ना इट टेक्स टाइम, काफ़ी टाइम जाता है होटल को सेटअप करने में. ओके, मतलब 5-6 महीने तो उसी में चले जाएंगे, फिर मेरे को वो लौटाना पड़ेगा. सो लेट्स से जब कोई भी बिजनेस लंबा चलने वाला है एंड आपको कोई चीज़ भाड़े पे चाहिए, यू टेक इट ऑन लीज. लीज का मतलब है इट इज़ फॉर मल्टीपल ईयर्स, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. it is for a multiple years. so till that time आपको भाड़ा देते जाना है. जो ओनर है वो भी खुश है क्योंकि उसको भाड़ा रेगुलरली मिल रहा है. he doesn't has to worry next tenant, next tenant, next tenant. तो बेसिकली ये अपनी जगह है काफ़ी सालों तक. so we treat it as an asset. okay, as an asset. next, cash at bank asset, furniture asset. okay, so the debit list is over. bank overdraft liability, payable liability, creditor liability. all are payable, payable, payable. वादा किया है, पे करना पड़ेगा. सेल्स ट्रेडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? वादा किया है, पे करना पड़ेगा. अनपेड मतलब क्या? वादा किया है, पे. सो आउटस्टैंडिंग के आगे क्या लिखा है? यू डोंट पे अटेंशन. अनपेड के आगे क्या लिखा है? यू डोंट पे अटेंशन. क्यों? क्योंकि दोनों तुमको पे तो करना ही है. दे आर लाइबिलिटी, दे आर नॉट एडजस्टमेंट्स. प्लीज नोट, ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही बार लिखना है. सो देयरफॉर इट इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी. कैपिटल इज पार्टनर्स कैपिटल. परचेस रिटर्न ऑब्वियसली परचेस में से माइनस होगा, तो इट इज ट्रेडिंग अकाउंट. सो वी हैव वन एडजस्टमेंट, वेल वन हिडन एडजस्टमेंट. देन विजिबल, दिखने वाले एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के तो 2 इफेक्ट आते हैं, एक ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में. प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट. डाउटफुल डेप्ट वापस बोलता हूँ मैं, डाउटफुल डेप्ट. DD, RDD, नॉट बैड डेप्ट. बैड डेप्ट डाउटफुल नहीं होता है, बैड डेप्ट हो चुका है, बट डाउटफुल डेप्ट मतलब हो सकता है नुकसान. तो वी कॉल दिस न्यू, NEW, न्यू RDD. डाउट किस पे है? डेटर पे है. तो एक काम करो, डेटर को 1 स्टार करो. 1 स्टार कर दिया. क्रिएट, whenever it is create मतलब न्यू, NEW, न्यू. रिजर्व, R, for discount on debtor. this is
coming for the first time in this problem, well, in this problem and in all the problems that I have done. What do you mean by discount on data? Well, if you want to make more daters, customers, okay, what is one attraction that you can give to your customer? Your product will be very good, your service will be very good, your shop will be very good, everything is good, तो भी कस्टमर नहीं आता है. क्यों रे, कस्टमर क्यों नहीं आता है? सो आई रिपीट माई सेल्फ, हमको नहीं पता, आप ट्राई कर सकते हो डिस्काउंट देने का. 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट. कुछ दुकानदार लोग तो बोलते हैं, वेबसाइट्स बोलते हैं 50% डिस्काउंट, कुछ बोलते हैं ईयर एंड सेल 70% डिस्काउंट. आई हैव नो आइडिया कितने लोग सही है गलत है, बट डेफिनेटली इट इज़ एन अट्रैक्शन. अगर एक वेबसाइट पे लिखा है 30% और दूसरे वेबसाइट पे लिखा है 50%, आई विल गो टू द 50%, क्योंकि जो फीलिंग आती है पैसे बचाने की वो 50% में ज़्यादा आती है. सो आई रिपीट, डिस्काउंट यू गिव टू योर डेटर. तब जाके एक डेटर जो दुकान में आता है, एक प्रोडक्ट लेके जाता है और वो प्रोडक्ट पे उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है, वो खुश हो जाता है. जब वो वापस जाता है तो वो जाके 2, 3, 4, 5 घर वालों को सबको बोलता है, आज मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये प्रोडक्ट खरीदा, मेरे को डिस्काउंट मिला. तो आई रिपीट माई सेल्फ, इसका कोड वर्ड है डिस्काउंट ऑन डेटा. दैट ऑल्सो इज DD, डिस्काउंट ऑन डेटा. वो ओ साइलेंट है, ओके, नहीं है ओ, ओके. इसको कहते हैं RFDD. प्लीज नोट दिस. हाँ, RFDD. इसका बन्नो फॉर्मूला जो है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसका डिस्काउंट के साथ कनेक्शन है. There is a formula जो मैंने a long time back I've spoken about, called as DANO, DANO. Today I'm not introducing it क्योंकि वो आने वाले sums में आने वाला है. So I repeat, today all you have to know is this is 3% on daters. There is one more adjustment connected to daters. एक है doubtful debt, एक है discount on data. तो दोनों डेटा के साथ कनेक्टेड है. So 2 stars. Fourth adjustment, valued of leasehold premises. Leasehold premises मतलब property, but जो आपने lease पे लिया है for many years. On 31st March is 1 lakh. That means there is an adjustment connected to leasehold premises. तो एक स्टार कर लो. Lastly, outstanding expenses. Printing and stationery. Outstanding is always a plus. Mark printing and stationery. Again, if you are confused, worried, or don't know, okay, sir, which question is this? Which page number is this? क्योंकि ऊपर से लिखा है it is from the textbook. So the title of this lecture, the title, always will mention the page number and the question number. So you can always have a look at that, and then you can have your textbook available. राइट नाउ मुझे पूरा ट्रायल बैलेंस रफा दफा करना है, एंड देन इन टूडेज प्रॉब्लम फॉर मी द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडवर्टाइजमेंट. द डिस्काउंट पार्ट विच इज़ न्यू, बट उसको मैं थोड़े ज़्यादा डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ाऊँगा. ओके, आज के लिए एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देते हैं. ओके, उसके अलावा बाकी पूरा सम तो करना ही है. स्टॉक 25,000 पोस्टिंग. माय डियर, लेट्स स्टार्ट. तो ओपनिंग स्टॉक 25,000, डेटर्स 8,500, एसेट साइड वो ऊपर है, उसके नीचे 1, 2, 3 लाइन, 2 स्टार 3 लाइन. नेक्स्ट बिल रिसीवेबल. So bill receivable, no adjustment about bill receivable, no adjustment. Next purchases, trading account में है, inner column 208,500. Returns उल्टा, क्रॉस कनेक्शन, डेबिट का क्रेडिट, तो क्रेडिट के सेल्स रिटर्न में लिखो ऊपर 1,000. नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इन दिस सम यू विल नोटिस काफ़ी सूना सूना है. ओके, वो जग सूना सूना लगे वैसे फीलिंग यहाँ पे आएगी क्योंकि देयर इज नॉट मच रिटर्न इन दिस अकाउंट इन दिस प्रॉब्लम. देन कैरेज आउटवर्ड 4,500 P&L में लिख लो. सो दे
4,500. Motor vehicle is an asset. Monday, Tuesday, Wednesday, 2021, 2022, 2023, it is always an asset. Above 55,000. General expenses, P&L, above 1,800. Export duty, P&L, 900. Export duty. Advertisement, 4,800. P&L. Yes, be ready for an explanation जो मैं as and when time आएगा वो explain करने का कर देता हूँ. Okay, which is in today's question only, so don't worry. Next, printing and stationery, उसमें भी एक adjustment है, but very simple. Outstanding, 1,200. Next, drawings, partners capital, ऊपर पहला है 3,500 and 2,000. Next, leasehold premises, here 1,10,000, leave one line. Next, cash at bank, इधर 45,000. and lastly I think furniture, 8,300. कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिख लो. हमारा डेबिट का साइड समाप्त हुआ. अभी क्रेडिट स्टार्ट करते हैं. आई थिंक देयर वर 3 लाइबिलिटीज: बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेएबल एंड क्रेडिटर. वन बाय वन आफ्टर वन. लेट मी राइट इट. सो लीव द फर्स्ट 5 लाइन्स. पहले 5 लाइन खाली. बैंक ओवरड्राफ्ट, bill payable 12,500 and creditors 68,000. Okay, there is no adjustment, no bakheda in them. Next, sales में भी कोई बखेड़ा नहीं है. ओनली वो क्या है, माइनस करके बाहर डालना. 3,24,000, नो बखेड़ा. आउटस्टैंडिंग रेंट एंड अनपेड वेजेस, अलग अलग अमाउंट है बट देन दोनों का मतलब सेम है. कल आना पैसे लेके जाना. सो पहला आउटस्टैंडिंग रेंट और उसके बाद में अनपेड वेजेस. दिस इज नॉट एन एडजस्टमेंट. प्लीज नोट. सर तुमने रेंट को क्यों नहीं मार्क किया, वेजेस को क्यों नहीं मार्क किया? नहीं, उधर का तुमको नंबर डायल करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड, इट इज इन द ट्रायल बैलेंस. तो इसका एक ही इफेक्ट है. नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ऊपर 75,000 एंड 75,000 दोनों का सेम. परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस कर लो, फिर आंसर बाहर डाल दो. सो 107,500. दैट्स इट, प्रिटी मच इट. ओके, ऑल योर आइटम्स of the trial balance are over. There are adjustments 1 2 3 4 5, but उसके पहले are very important adjustment of advertisement. Let's try to understand. Okay, क्या लिखा है? For 3 years means advertisement. Okay, companies advertisement अलग अलग टाइप से करते. कोई न्यूज़पेपर में करता है, कोई रास्ते पे पेंटिंग करता होगा, या बड़ा सा एक बोर्ड होता है उस पे करता होगा, या टीवी सीरियल्स में करता है, या मूवी थिएटर्स में जब कुछ बराबर था, ओके, पिक्चर्स के पहले करता है, इंटरवल में करता है. एडवर्टाइजमेंट्स मैनी कंपनीज डू इन डिफरेंट स्टाइल्स. कोई फेसबुक पे करता है, कोई इंस्टाग्राम पे करता है, कोई यूट्यूब पे करता है. सो एडवर्टाइजमेंट जब लोग अलग अलग वेराइटी में करते हैं, उन लोगों को उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करना पड़ता है. इफ़ यू हैव सम आइडिया रिगार्डिंग यूट्यूब, ऑब्वियसली यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस चैनल्स जो इंडिविजुअल्स चलाते हैं. ओके, सो देर आर मैनी पीपल जो अपने लाइफ को कैमरा पे
कैप्चर करते हैं, दे क्रिएट व्लॉग्स, ओके, सो दैट्स वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ओके, व्लॉग्स. There are many famous vloggers in India. You may have heard about Mumbaikar Nikhil. You may have heard about Gaurav Taneja in different parts of India. Okay, now there is a gentleman, quite a young one, a very young person. Okay, Saurabh Joshi. Okay, not staying in a urban city in India, but staying in a kind of a village setup. Okay, now I think so, maybe कुछ 4 या 5 दिन पहले he became the top vlogger in India because the number of subscribers crossed Gaurav Taneja, who was the previous top vlogger in India, and around I think so 56-57 lakh subscribers. Now that's a big count. Okay, and he was pre-pandemic, pandemic के पहले सौरभ जोशी. Okay, young guy, I think less than half of that, so around 30 lakh subscribers एक साल में people are connecting on a daily basis. He puts up one video on a daily basis. Around 35, 36, 40 lakh people watch his 8-minute, 10-minute, 15-minute vlog about his life, simple things, his life, his brother, mummy, papa, etc, etc. Now अगर कोई कंपनी, now he's good at drawing, he's an artist, तो let's just say Camlin company, Faber-Castell company, these are companies which make products जहाँ पे पेंटिंग कनेक्शन में crayons, okay, oil paints, so उनका ध्यान अगर सौरभ जोशी पे आता है and they look at his growth, they will contact him and they will tell him कि देखो ना आप हमारा जो प्रोडक्ट है आर्टिस्ट के कनेक्शन में है, कैन यू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट, क्या आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, मतलब आपके ब्लॉग में बोल देना. एंड लुकिंग एट हिज ग्राफ, दे में से कि ये लड़का आगे जाके बहुत ऊंचाई पे जाएगा, तो एक काम कर लेते, इसको अभी बुक कर लेते, इसको हम लोग आने वाले 3 साल का क्या 5 करोड़ 10 करोड़, सी बड़े बड़े कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत बड़ा रहता है. सो दे विल से सौरभ जोशी एक काम करो, हफ्ते में एक व्लॉग में हमारा एक बार बोलने का, हमारा प्रोडक्ट को एक बार दिखाने का, हमारा प्रोडक्ट को तुम्हारा जब शूटिंग चल रहा है ना घर में पीछे रखने का, ताकि कैमरा का फ्रेम में वो दिखना चाहिए. वी विल पे यू 5 करोड़ अ ईयर. सौरभ जोशी इज हैप्पी, इज लाइक अच्छा 5 करोड़ 3 साल का दे रहे, मतलब 15 करोड़ रखो. It sounds big numbers, but then that is how advertisement works. आपको वो समझना पड़ेगा. उससे ज़्यादा मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो what does these companies do? They pay the YouTuber कि सर 3 साल तक आप ये पैसे रखो, हमारा एडवर्टाइजमेंट चलना चाहिए, आपके व्लॉग में आपके कैमरा के पीछे दिखना चाहिए, आपके स्क्रीन में दिखना चाहिए. हाँ, why are they paying for 3 years? Because if this person has got 30 lakh subscribers in 1 year, maybe he gets 30 lakhs more. You don't know. Okay, बाद में उसका भाव रेट बढ़ सकता है. ओके, अभी जो 5 करोड़ है वो 15 करोड़ कल हो जाएगा 1 साल के लिए. हाँ, सो व्हाट इज दिस कंपनीज डूइंग? नहीं, अभी बुक कर लो, सस्ता है, बुक कर लो. दे पे, तो उन लोग क्या है, एक्स्ट्रा पे कर देते हैं. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, अभी सौरभ जोशी से यहाँ पे आप आ जाओ. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, for 3 years from 110, what is 110? October from मतलब गाड़ी वहां से स्टार्ट हुई 110. ओके, लाइक आई सेड टुडेज लेक्चर में वो एक मुद्दा, दैट वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, देयरफॉर मेरे को उस पर थोड़ा ज़्यादा रोशनी, ओके, थोड़ा ज़्यादा फ्लैश लाइट डालना है. नाउ इस पर थोड़ी चर्चा हम करते हैं विस्तार से, आराम से. ओके, सो है तो बहुत लंबा स्टोरी यहाँ पर, बट लेट्स रीड इट थोड़ा थोड़ा करके. ओके, सो देयर इज ऑब्वियसली द हिडन एडजस्टमेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट. ट्रायल बैलेंस में दे हैव गिवन टू यू 4800, 3 साल का एडवर्टाइजमेंट. एंड WEF उन्होंने कहा फ्रॉम, WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब
1 अक्टूबर से 110 एडवर्टाइजमेंट चालू हुआ. द ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन कम्स अक्टूबर, 6 महीने बाद. तो एडवर्टाइजमेंट 6 महीने बाद शुरू हुआ. प्लीज नोट दैट, प्लीज रीड. एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स. 3 ईयर्स का मतलब क्या है? 12 महीना, 12 महीना, 12 महीना, 36 मंथ्स. मीन्स इट इज पेड एक्स्ट्रा. बराबर है, बिकॉज वी राइट ओनली फॉर 12 महीना. 12 महीने से ज़्यादा आप पे करोगे तो एक्स्ट्रा है. बट एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर. इट इज ओनली एन एक्सपेंस. हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट कितने महीने के लिए चला है? डोंट से 36 मंथ्स. 36 मंथ्स के लिए तुमने पे किया है, बट वो चला है 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. बस अपना साल खत्म. साल के अंदर एडवर्टाइजमेंट की गाड़ी 6 महीने के लिए चली. दैट मीन्स हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 6 महीने का खर्चा है. बट यू विल से सर हमने तो 3 साल का भर दिया. हाँ, पे किया, बट अभी तक उसका खर्चा नहीं हुआ है. खर्चा का मतलब है जितनी उसकी गाड़ी चली है. एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 6 महीने के लिए चला है. अक्टूबर, November, December, January, February, March. That is what I am explaining and that is what I have written. Okay? It is only an expense for 1 October to 31st March. मतलब 6 महीना. बाकी का एक्स्ट्रा है, प्रीपेड है. ओके, नीचे देख लो, थोड़ा डायग्रामेटिक स्टाइल में मैंने आपको दिखाया है. तो जो अपना साल होता है वो 12 महीने का होता है. प्लीज रीड. 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. ओके, नॉर्मली ये 12 महीने के खर्चे के हम लोग डिस्कशन करते हैं. बट एडवर्टाइजमेंट ये 12 महीने के अंदर कब शुरू हुआ? 1 अक्टूबर. दैट मीन्स अक्टूबर, लाइक आई सेड, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 6 महीना. आपको दिखता है ये 6 महीना. जबकि आपने पे किया, ये बड़ा आपको यहाँ पे स्माइली दिखता है. ओके, ये मेरे ऊपर, ये कितना? 3 साल, 36 मंथ्स. सो वेन एवर यू गेट दिस फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम, प्लीज द नंबर ऑफ ईयर्स जो रहेगी ना उसको मंथ में कन्वर्ट करना. प्लीज कन्वर्ट इट इनटू मंथ्स एंड देन टॉक एंड थिंक अबाउट इट. कि 3 साल मत बोलो, 36 मंथ्स बोलो. अच्छा, 36 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट आपने भरा, बट उसमें एडवर्टाइजमेंट कितने महीनों के लिए चला? कितनी पेट्रोल खत्म हो गई एडवर्टाइजमेंट की? 6 महीने का. बाकी गाड़ी और आगे जाएगा. देखो ना, इतना बड़ा गाड़ी आगे जा रहा है, ये फ्यूचर में जा रहा है. ये प्रीपेड है. क्वेश्चन मार्क. कितने महीने का प्रीपेड है? 36 मंथ्स का आपने पेमेंट कर दिया है. सिर्फ 6 मंथ्स तक गाड़ी चली है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा चला है, बाकी एक्स्ट्रा है. अभी 36 मंथ्स में से 6 महीना निकाल लो. ऑब्वियसली यू विल गेट एन आइडिया कि 30 मंथ्स इज एक्स्ट्रा. 30. सो आई रिपीट माई सेल्फ. ये अलग क्यों है? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट शुरुआत से, साल के शुरुआत से शुरू नहीं हुआ. ओके, द ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल बट एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट्स ऑन 1 अक्टूबर. यू मे से बट सर अगर दुकान शुरू हो गया 1 अप्रैल को तो एडवर्टाइजमेंट भी तो उस दिन पे स्टार्ट होना चाहिए. तो मैं बोलूँगा कैसे पॉसिबल है? अगर आप एक सीरियल बना रहे हो तो जैसे ही फर्स्ट डे पे शूटिंग होगा, हाउ कैन यू मेक एन एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि शूट ही हुआ है ना, अभी उसको एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, ये वो, देयर आर सो मेनी थिंग्स. प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तब जाके आपको सीन मिलेगी, तब जाके आप उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ट्रेलर बनाओगे. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एडवर्टाइजमेंट शुड स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे. सो 36 मंथ्स एडवर्टाइजमेंट, 36, बट 6 मंथ्स इज ओके क्योंकि उतनी गाड़ी चली. 30 मंथ्स इज एक्स्ट्रा. एंड देन इफ यू लुक एट डाउन, जस्ट मेरे पीछे, सॉल्व कैसे करें? वेल, देख 3 साल मतलब 36 मंथ्स, तो इट इज 4800. दैट इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो तुमको 30 मंथ्स का ढूंढना है. प्रीपेड एक्स्ट्रा कितना? यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड द आंसर इज जस्ट बिहाइंड मी. मैं थोड़ा खिसक जाता हूँ, क्लियर है, वहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है. इट इज 4000. सो 4800 में 6 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट सही है, बाकी का एक्स्ट्रा है. एंड दिस इज इन दिस प्रॉब्लम 6 मंथ्स. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में ये 6 मंथ्स का होगा, नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम में स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर. व्हाट इफ स्टार्ट होता 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीना ओके एडवर्टाइजमेंट. बाकी 33
extra. So it can, the date can change and the extra period can automatically change, which I hope तो बाय हार्ट मत करना, यही समझना है, नहीं ये नहीं, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है और आपको हमेशा जो एक्स्ट्रा मंथ्स है उसकी गिनती करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे ये मेरे पीछे हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर 4000. ओके, लेट मी चेंज माय पोजीशन एंड आई होप ये पूरा तामझाम आपने लिख लिया. ओके, यू हैव रिटन इट. कहाँ पे है? एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000, आउटर कॉलम 800. 800 का सेकेंड इफेक्ट गलती से मत देना ना, क्योंकि 4000 प्रीपेड है. तो एसेट साइड ये हमारी इस तरफ और इस तरफ 4000. एंड दैट इज हाउ in any problem of final accounts, when you get this from, FROM, with effect from, this is how you think. Okay, so I repeat myself, if it is for 3 years और कुछ नहीं कहा तो सिंपल हो जाता है, 3 साल का इतना, 2 साल का कितना. बट जब वो देते from, then you have to count from that months and then you have to count कि अपने साल में कितना महीना है, एक्स्ट्रा कितना महीना है. Okay, so this is one of them. I will be solving more problems in which थोड़ी ज़्यादा आपको और वेराइटी मिल जाएगी. बट आई होप एडवर्टाइजमेंट का इस तरीके का प्रीपेड आपको समझ में आया. नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक बढ़िया है 32,000. 2 इफेक्ट, एक तो ट्रेडिंग में देते हैं, ये मेरे पीछे आ गया, और एक भी मेरे पीछे आ गया एसेट साइड पे. नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोविजन. प्रोविजन की जगह पे यू कैन इवन राइट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, DD. हाँ, DD कितना? 2000. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, 2000 रेडीमेड दिया ना. क्या है डाउटफुल डेब्ट? अरे डेटर पे डाउट है. क्या डाउट है? भाग जाएंगे, हो जाएंगे, मेरा पैसा लेके चंपत हो जाएंगे. न्यू RDD 2000. तो उसके नीचे आंसर 78,500. दैट इज योर गुड डेटर. वो याद रखना, क्यों गुड डेटर? अरे जो डाउट वाले उनको मैंने रफा दफा किया, उनके अमाउंट को मैंने रफा दफा किया. नाउ आई हैव नो गुड कस्टमर्स अबाउट 78,500. दिस पीपल विल नॉट डू माई नुकसाना. सेकेंड इफेक्ट, वो फॉर्मूला है ना बन्नो का, उसमें न्यू RDD, बाकी कुछ नहीं उसमें, ऊपर नीचे कुछ नहीं. सो आउटर कॉलम 2000, तो बन्नो खत्म. सो इसके बाद जो आने वाला है वो इसके साथ में कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बैड डेप्ट का है, बैड डेप्ट का. अभी इसके बाद में क्या आने वाला है? वेल, फॉर द फर्स्ट टाइम 3, क्रिएट मतलब कुछ नया बना. न्यू क्या? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा. व्हाट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा? RFDD, डिस्काउंट ऑन डेटा. थोड़ा अलग है, RDD नहीं है, RFDD है. व्हाट इज दैट? अरे डिस्काउंट देना है. किसको डिस्काउंट देना है? कस्टमर्स को, द गुड कस्टमर्स. सो वेयर आर योर गुड कस्टमर्स? इज नो अबाउट 78,500. दे आर माई गुड कस्टमर्स. हाउ आर दे गुड? दे आर गोइंग टू पे मी full money. So I am very happy, but I want to do something for them. What do? I gave them discount. I told them 3% discount minus. Okay, चलो 3% मत दो. वो क्या है? देखो फुल फॉर्म में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, RFDD. आज इतना ही बोलता हूं मैं, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस दिस अ लिटिल बिट मोर इन अ डिफरेंट प्रॉब्लम, जहाँ पे ध्यान में इस पे ज़्यादा दूंगा. टुडे जस्ट सिंपल डिस्काउंट दिया मैंने, कस्टमर को बोला मत भर. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट, मत भर. तो 3% माइनस किया. हाउ मच इज 3%? वेल, 2, 3, 55, 55 ऑफ 78,500. 78,500 का 3%. आउटर कॉलम 76,145. ये सब फेयर वर्क है, नॉट लाइक लास्ट टाइम कि भाई दरवाज़ा बंद है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दरवाज़ा खुला है. यू विल गेट मार्क्स फॉर ऑल ऑफ दिस. नाउ दिस 3%, 2, 3, 55, 55 क्या है? अपना नुकसान है रे. क्यों? मैं कस्टमर को बोला डोंट पे, तो अपना तो नुकसान है. 3% दिमाग में कैलकुलेट किया, नुकसान है. 3% दिमाग में कैलकुलेट किया, नुकसान है, तो डेबिट में आ जाएगा. जस्ट दैट इट इज नॉट कनेक्टेड टू बन्नो.
इट इज नॉट कनेक्टेड टू 1, तो अलग से लिख लिया न्यू RFDD 2355, सिंपल एज दैट. उधर माइनस किया बिकॉज आई टोल्ड माई कस्टमर डोंट पे मी 3%, एंड सेकेंडली इधर डेबिट में लिखा बिकॉज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. नुकसान. देन value or valued leasehold premises on 31st March 19, 1 lakh. So the last day पे क्या बोल रहे हैं, जो premises है ना, कितना है premises, ये देखो ना अपने सिर पे 1,10,000. इट इज नॉट 1,10,000. कौन बोला ना उन लोग ने पॉइंट नंबर 4 के अंदर के ऑन 31st March 19, ऊपर देख डेट बैलेंस शीट का आउटर कॉलम में, इधर ध्यान दे, आउटर कॉलम में the valued is 1 lakh. Premises has become 1 lakh, but you may say, but sir, it was 1,10,000. How did it become 1 lakh? ऐसा नहीं, ऐसा माइनस हो के कितना माइनस हो गया 10,000. क्यों माइनस हो गया? अरे डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ. लीजहोल्ड प्रेमाइसेस में समटाइम्स द टीचर कैन यूज द वर्ड रिटर्न ऑफ, मतलब रिमूव्ड. हाँ, तो इट्स ओके, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर लो. ओके, बट प्लीज नोट इट इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ गिविंग यू डेप्रीसिएशन. ये पहले यार 1,10,000 का था, अभी 1 लाख का हो चुका है, तो 10,000 को रफा दफा करो. ओके, कहाँ पे लिखूँ? दिमाग में कैलकुलेट किया 10,000 का डिफरेंस, तो PNL में लिखूंगा. और कहाँ पे लिखेंगे? टू डेप्रीसिएशन, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रेमाइसेस, आपको जो बोलना है 10,000, इट्स द सेम. ओके, ये बोलो वो बोलो, दोनों का मतलब सेम है. सो ये तो हो गया लीज होल्ड प्रेमाइसेस. एंड आई थिंक लास्ट वन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपीज़. आउटस्टैंडिंग का मतलब प्लस होता है आज का खर्चा, तो जहाँ पे यू हैव रिटन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उधर प्लस. यू डोंट हैव द प्लेस फॉर राइटिंग द फुल वर्ड आउटस्टैंडिंग, मत लिखो ना, O/S शॉर्ट फॉर्म. You can write that, no problems. Outer column 1,700. Second effect मत भूलना. Liability side, outstanding printing 500. We had around 5 adjustments. In that we also had a hidden adjustment based on advertisement, for which, to quickly remind you, this was the कैलकुलेशन एंड दिस वॉज द आंसर. ऐसे चुटकी बजा के नहीं आया, लंबा स्टोरी मेरे को सुनवाना पड़ा. हर टाइम नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम से मैं शॉर्टकट में कर लूँगा, बट दिस हैड टू बी डन वंस के बाबा एटलीस्ट द फर्स्ट टाइम एज अ टीचर, एज पर्सन हु इज मेंटरिंग यू, कोचिंग यू, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन इट टू यू वंस विस्तार में, मतलब आराम से. एंड देन गाड़ी हम लोग थोड़ी फास्ट कर लेंगे. राइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड everything that has been given in this question, whether वो ट्रायल बैलेंस हो, हिडन एडजस्टमेंट हो या एडजस्टमेंट हो, तो हमारा काम हो चुका है. तो टैली करना स्टार्ट करते हैं. डेबिट का टोटल 235,500, बट क्रेडिट तो भारी है, देखो ना 3 लाख है इस तरफ, 3,56,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1,20,500. प्लीज डू नॉट ट्रस्ट मी, होल्ड ऑन. फिर भी लाइक हाँ सर तुम्हारे पे तो विश्वास कर रहे हो और तुमसे अकाउंट्स पढ़ रहे. नहीं, अकाउंट्स के लिए विश्वास करो, मैथमेटिक्स के लिए. ये जो अभी आया ना 1,20,500, ये सब्ट्रैक्ट करके आया 3,56,000 माइनस 2,35,500. यू ऑल्सो डू, आप भी करो ना, गलती क्यों नहीं हो सकती है. ओके, और अगर गलती होगी तो मैं तो पहला रहूँगा एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ भाई गलती हुई है, बट देन फिर सुधार तो सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर there is a mathematical mistake, if something is wrong, let us know in the comment box. कि sir this is what is wrong, तो हम लोग rectify कर लेंगे. At least we will put up a pinned comment and tell everybody कि देखो भाई ये गलत कैलकुलेशन हमसे हो गया, अगर हुआ तो ओके आप हमको उसके बारे में बताओ. इसका सेकेंड इफेक्ट PNL में होगा, क्रेडिट साइड पे. ओके, अब क्रेडिट भारी है, आप डेबिट का नोटिस अगर करोगे टोटल 24,055, तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट आएगा. लाइक मेनी सम्स, सो मेनी सम्स in this problem, I have read the whole problem. Net profit 96
445, पूरा प्रॉब्लम पढ़ा एंड क्या नहीं मिला, रेशो तो नहीं मिला, तो रेशो कितना होता है यार, रेशो फिर इक्वल होता है और क्या करेंगे, 1:1। ओके, काय को झगड़ा कराने का मीरा और माधव में, दे लुक वेरी गुड नो, सेटअप अच्छा दिखता है उन लोगों के, तो झगड़ा मत कराओ, 1:1, हाफ हाफ। तो जो नेट प्रॉफिट अभी अभी आया है ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, हाफ हाफ। हाँ, लाइक मेनी टाइम्स यू विल गेट इन डेसिमल, 48,222.5, 48,222.5। अब दोनों नहीं बन सकते 3, यूनिट्स प्लेस कैन नॉट बिकम 3, क्योंकि इफ यू मेक इट फॉर मीरा एंड माधव 48,223, तो फिर द यूनिट्स प्लेस विल बिकम 6, जो पॉसिबल नहीं है, यू कैन इंक्रीज। ओके, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं करना। तो मीरा को ओके आप राउंड ऑफ करो बिकॉज शी इज द फर्स्ट पार्टनर एंड दैट फॉर यू विल गेट 48,223 राउंड ऑफ। माधव को थोड़ा रुकना पड़ेगा, 1 रुपया कम अपने प्लेट में लेना पड़ेगा, 48,222। तो उसका कोई राउंड ऑफ का लॉजिक, उसका कॉमन सेंस लगाया हम लोगों ने। यहाँ से ट्रांसफर पार्टनर के अकाउंट में कर लो, क्रेडिट साइड ऑब्वियसली, मीरा का फिर टोटल करना। सो द क्रेडिट इज हैवी, नॉर्मली 99% क्रेडिट ही हैवी रहता है। द डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ 3,500 इज 1,19,723, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल फॉर मीरा। ऐसे कुछ माधव का भी रहेगा, 2,000 माइनस कर लो डेबिट साइड से, 1,21,222 क्लोजिंग कैपिटल। वेयर विल दिस गो? टू अ बैलेंस शीट, बोला बैलेंस, so it has to go to a balance sheet. So on the liability side, this closing capital will be written for Meera and Madhav, and then total कर लेंगे हम लोग 2,40,945. So I repeat, add कर लिया, and after that ऐसा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करनी पड़ती है बट नॉट करेक्ट आंसर आने के लिए जनरली करनी पड़ती है, विच इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पे आपको टोटल करना है लाइबिलिटी का, विच इज़ 3,30,445, एंड ऑब्वियसली ऑल्सो डू इट फॉर दी एसेट साइड। मैं थोड़ा खिसक लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा वो 3,30,445, एंड ऑब्वियसली ना दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, मम्मी डैडी के लिए गुड न्यूज़ अलग होता है, हमारे जैसे कॉमर्स के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए गुड न्यूज़ अलग होता है कि भाई हाँ, डेबिट और क्रेडिट सेम आ गए हैं। सो इट वॉज अ नॉर्मल क्वेश्चन, द ओनली डिफरेंस वॉज ऑन द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ विथ इफेक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। 3 years, वो 3 years का 4 years भी हो सकता है, 2 years भी हो सकता है, और दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ओके, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम रिएक्ट करेंगे। अभी के लिए दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम होपिंग, आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, आपकी खोपड़ी में इसका अंडरस्टैंडिंग फिटिंग हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ लविंग, शेयरिंग इज़ दी थिंग इन टूडेज डेज ऑफ सोशल मीडिया। ओके, तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, लाइक कर देना। दोबारा बता रहा हूँ, क्या करूँ, कभी कभी मेरी मेमोरी भी थोड़ी शॉर्ट होती है। ओके, सो कोई तकलीफ़ होगी जीवन के बारे में, मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, अकाउंट्स के बारे में मैं हेल्प ज़रूर कर पाऊँगा। यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन वी मीट अगेन। अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का। टेक केयर योर लवली फैमिली मेम्बर्स। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय।